Hello student, welcome to my channel Educational Buddha. My name is Hemant Rana and today we'll discuss the chapter number 1, Building with Bricks of class 4th Mathematics textbook of NCERT. And this video is useful for all CBSE board school like all Kendriya Vidyalayas. So let us start our chapter. The first question is, what is brick? Here you can see a sample of brick. A brick is man-made building material used to make walls and other construction. It is hard block of baked clay that is used for buildings, houses, etc. And it is baked in the kiln. And here you can see the photograph of kiln. Kiln that means ईंटों की भट्टी जहां पर ईंटें बेक की जाती है, पकाई जाती है. That is called kiln. This is not kiln but kiln. N is silent. Now, how many faces are there of brick? एक brick के कितने faces होते हैं? तो here you can see a different faces of a brick. एक brick के आप यहाँ पे different faces देख पा रहे हैं. So here you can observe easily there are 1, 2, 3, 4, 5 and 6 faces. So there are 6 faces of a brick. Now we start our chapter, page number 1. Brick patterns for Jagriti School. This is the true story of Jagriti School in Murshidabad, West Bengal. When its building was being made, there was a plan to make brick patterns on the floor and walls. Jamal, Kalu, and Pia were the masons for the brickwork. They wanted to get new ideas for the school building, so they took their other friends to see the old tomb of Murshid Quli Khan. See photos here. You can see the tomb of Murshid Quli Khan. ये tomb है, कब्र है मुर्शिद कुली खान की. जागृति की स्कूल में, जो जागृति की स्कूल है मुर्शिदाबाद में है, वेस्ट बंगाल स्टेट. वहाँ पर जो ये मैसन्स है, कारीगर है, जमाल, कालू एंड पियर, उनको काम दिया गया है कि आप बिल्डिंग के वॉल पे और फ्लोर पे पैटर्न्स बनाए. तो वो यहाँ पर देखने आए हैं कि किस तरह की वो पैटर्न्स बना सकते हैं. So this building has a big floor with about 2000 beautiful brick patterns. These were made by masons long back, about 300 years ago. Here, not the patterns are being made. यहाँ पे patterns जो बनाई जा रही थी वो almost about 2000 years ago the masons made the pattern. मैसन ने यहाँ पे 2000 साल पहले पैटर्न्स बनाई थी. And these were made by masons long back about 300 years ago. These patterns were made by the masons about 300 years ago. 300 साल पहले ये पैटर्न्स बनाई थी. एंड हाउ मेनी पैटर्न्स आर देयर? अबाउट 2000 ब्रिक पैटर्न्स. 2000 ब्रिक पैटर्न्स है. सो लुक हाउ द ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन दीज 5 फ्लोर पैटर्न्स. यहाँ पे आपको 5 फ्लोर पैटर्न्स दी गई हैं. वहां पे आप देखिए कि ब्रिक की पैटर्न कैसे बनाई गई है. पैटर्न नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5.
यहाँ पे आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ब्रिक की पैटर्न दिखाई देगी, सारे के सारी ईंटें ही हैं, लेकिन हर एक ईंट को अलग अलग तरीके से अरेंज किया गया है और एक अलग पैटर्न्स बनाई गई है। तो विच फ्लोर पैटर्न्स डू यू लाइक द मोस्ट? आपको यहाँ पे आंसर लिखना है कि आपको इसमें से कौन सी पैटर्न अच्छी लगती है। 1 2 3 4 5, कोई भी आपको अच्छी लगी उसका आंसर लिखे। एंड हैव यू सीन सच पैटर्न्स एनीवेयर एल्स? और क्या आपने किसी और जगह पे ब्रिक की पैटर्न्स देखी हैं? अगर कोई जगह पे देखी है तो उस प्लेसेस, उस जगह का नाम लिखना है आपको यहाँ पे। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड, पेज नंबर 2। The masons came back excited. Jamal said, in those days they had so many interesting brick patterns. उस दिनों में लोग इतनी इंटरेस्टिंग ब्रिक पैटर्न्स बनाते थे, वो एक्साइटेड है। वी हैड फॉरगॉटन दिस, हम तो भूल ही गए हैं। लेट अस मेक सम नाइस डिजाइन्स ऑन द फ्लोर ऑफ दिस स्कूल। ईच मैसन made different brick patterns. The school is proud to have such a beautiful building. Children play and sing on it and also make new patterns themselves. Now, each masons made a different brick pattern. अब हर एक कारीगर ने अलग अलग ब्रिक पैटर्न बनाई है। The school is proud to have such a beautiful buildings and children play and sing on it. बच्चे वहाँ पे खेलते हैं और गाना गाते हैं and also make new patterns themselves. और उनकी खुद की भी कोई पैटर्न्स बनाते हैं। Here you can see the different brick patterns on the floor of the Jagriti school. जागृति स्कूल की बिल्डिंग है, उसके फ्लोर पे यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं ब्रिक की अलग अलग पैटर्न्स बनाई गई है। ध्यान से देखें कितनी सारी पैटर्न्स बनाई हैं। बच्चे जहाँ पे बैठे हैं वहां पर देखें, वहां पर भी ब्रिक की पैटर्न्स ही है। Now here you can see A to K, that means 11 photographs of different brick patterns. आप यहाँ पे अलग अलग ब्रिक के पैटर्न्स के फोटोग्राफ्स देख सकते हैं। There are 11 photographs. So which pattern is made in a circle? आपको इसमें से कौन सी पैटर्न है जो सर्कल में बनी हुई दिखाई दे रही है? So here there is only one pattern. Pattern J is made in a circle. आपको यहाँ पे जो J की पैटर्न्स है वही सर्कल में बनी हुई दिखाई दे रही है। ये तो सर्कल में है ही नहीं। आपको लगेगा कि जो E वाली पैटर्न है वो सर्कल में है, बट ऑब्जर्व केयरफुली, ये ईंटें हैं, एक बड़ी है, यहाँ पे कट करके यहाँ पे छोटी ईंट है, इसके बाद फिर से बड़ी हो गई, यहाँ पे बड़ी है, ये छोटी हो गई, बड़ी छोटी, तो ये सर्कल नहीं बन रहा है। ध्यान से देखिए, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट सर्कल बन रहा है। 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे आपको कंप्लीट सर्कल बना हुआ दिखाई देता है, जैसा यहाँ नहीं दिखाई देता है। तो ओनली जो जे वाली पैटर्न्स है वही सर्कल में बनी हुई है। नाउ इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाउस? ड्रॉ अ लाइन। यू आर ऑलरेडी स्टडी इन क्लास थर्ड, आपने ऑलरेडी क्लास थर्ड में स्टडी कर लिया है व्हाट द मिरर हाउस मिरर हाउस क्या होते हैं उसके बारे में। तो आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है जहाँ पे आपको मिरर हाउस दिखाई देते हैं। तो चलो हम देखते हैं किस किस में मिरर हाउस हमें दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट पैटर्न नंबर ए, यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जैसा है वैसा का वैसा यहाँ पर भी है ना, तो ये मिरर हाउस हो गया। नेक्स्ट पैटर्न नंबर बी, ऑब्जर्व केयरफुली, यहाँ पर भी जिस तरह की पैटर्न्स बनी हुई हैं एज इट इज यहाँ पर भी है। सो दिस इज ऑल्सो मिरर हाउस। नेक्स्ट एच, ध्यान से देखें, आपको यहाँ पे जैसे पैटर्न्स दिखाई दे रही है एज इट इज यहाँ पर भी पैटर्न्स दिखाई दे रही है।
तो ये भी मिरर हाउस है। एंड पैटर्न आई, यहाँ पर अब अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर जिस तरह की पैटर्न्स बनेगी सेम वैसी ही पैटर्न्स यहाँ पर भी बनेगी, तो ये भी मिरर हाउस है, राइट। तो यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है ए बी एच एंड आई। एंड ऑल्सो मिरर हाउस यू कैन सी इन द पैटर्न नंबर जे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर जिस तरह की पैटर्न्स दिखाई दे रही है एज इट इज पैटर्न्स हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, तो ये भी मिरर हाउस है। बाकी कोई मिरर हाउस है नहीं। आप ध्यान से देखेंगे तो वो मिरर हाउस नहीं बनेगा। एंड होमवर्क फॉर यू, नाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लोर पैटर्न्स। अब आपको अपनी खुद की फ्लोर पैटर्न्स ड्रॉ करनी है, ओके। यू हैव टू ड्रॉ एटलीस्ट 2 न्यू फ्लोर पैटर्न्स। अपने आप फ्लोर पैटर्न्स ड्रॉ करेंगे और एटलीस्ट 2 तो ड्रॉ करेंगे ही करेंगे आप, ये आपके लिए होमवर्क है। नाउ पेज नंबर 4 एंड टॉपिक इज हाउ टू ड्रॉ अ ब्रिक। हम ब्रिक को कैसे ड्रॉ करेंगे? सो दीज आर 2 photos of the same brick. Here you can see the 2 photograph of same brick. एक ही तरह की ब्रिक है लेकिन आपको 2 अलग अलग एंगल से फोटो खींचे हुए दिखाई दे रहे हैं। In one photo we can see only one face of the brick and in the other we can see 3 faces. तो circle the photo showing 3 faces. तो वो वाले फोटोग्राफ को हमें सर्कल करना है जहां पर ईंट के हमें 3 फेसेस दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इन दिस ईट ब्रिक वी कैन सी 3 फेसेस। ये वाले फोटो में हमें ब्रिक के 3 फेसेस दिखाई देते हैं, फेस नंबर 1, फेस नंबर 2 एंड फेस नंबर 3, 1 2 एंड 3। तो इसको हम सर्कल करेंगे। एंड इन दिस फोटो we can see only one face of brick. यहाँ पर हमें ब्रिक का ओनली एक ही फेस दिखाई दे रहा है। So how many faces in all does a brick have? We have discussed earlier just now. How many faces in all does a brick have? ब्रिक को कितने फेसेस होते हैं? Of course 6 faces. And is any face a square? कोई फेस ब्रिक का 6 जो फेसेस होते हैं उसमें से कोई भी फेस स्क्वायर होता है क्या? Is any face of a brick a square? Is it possible? No. All the faces of a brick are in rectangular shape. रेक्टेंगल होते हैं, स्क्वायर होते नहीं है, रिमेंबर। हाँ, ये अलग चीज है कि कोई रेक्टेंगल छोटा होता है, बड़ा होता है, बट होते हैं सारे रेक्टेंगल ही, स्क्वायर नहीं होता है। सो आवर आंसर इज नो। कोई भी फेस जो है वो स्क्वायर नहीं होता। सो ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ अ ब्रिक। ब्रिक का स्मॉलेस्ट फेस हमें ड्रॉ करना है। तो हियर यू कैन सी दिस इज द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ अ ब्रिक। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया स्मॉलेस्ट फेस ऑफ अ ब्रिक इस तरीके से, ओके। नेक्स्ट, which of these are the faces of a brick? Mark a tick. अब इसमें से आपको उन शेप पे टिक करना है जो ब्रिक के फेस हैं। सो हियर दिस इज नॉट अ फेस ऑफ ब्रिक 1, ये भी फेस नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ये 1 2 एंड 3 में हमें लगता है कि फेस हो सकते हैं, बट जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड, अभी ही हमने डिस्कस किया है कि अगर स्क्वायर है तो वो फेस नहीं होगा। तो ये तो स्क्वायर है, तो दिस इज नॉट अ फेस ऑफ अ ब्रिक। सो रेस्ट 2 शेप्स, ये रेक्टेंगल जो 2 बचे हैं 2 शेप्स वही हैं।
ये हो सकते हैं ब्रिक के, है ना, ये दोनों ही फेस हो सकते हैं ब्रिक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक, मार्क टिक। ओके, so here 1 2 and 3, this is not a drawing of a brick, ये कोई ब्रिक की ड्राइंग नहीं है। सिलेंडर, लाइक प्रिज्म, टेंट की तरह बना हुआ है, क्यूब एंड अनदर क्यूब, ये इसमें से कोई भी फेस ब्रिक का नहीं है, सॉरी ड्राइंग ब्रिक की नहीं है। दिस कैन बी a drawing of a brick, so हम इस पे टिक करेंगे। Now make a drawing of this box to show 3 of its faces. Here you can see the geometry box. अभी जो जियोमेट्री बॉक्स हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है उसकी ड्राइंग बनानी है, और ड्राइंग इस तरीके से बनानी है कि उसके 3 फेसेस दिखाई दे। तो चलो देखते हैं कि ड्राइंग कैसे बनाती। फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल लाइक दिस। फर्स्ट इस तरीके से रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। नाउ ड्रॉ अ डायमंड लाइक दिस ऑन रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के ऊपर इस तरीके से डायमंड को ड्रॉ करेंगे। तो यू कैन सी द 1 face and 2 face of this geometry box, and now 3rd face here we'll draw another diamond, small diamond here. So drawing is ready of 3 faces, 3 faces की drawing यहाँ पे ready हो गई of this geometry box, है ना। तो 1 face, 2nd face and 3rd face, और इस तरीके से आप ब्रिक की ड्राइंग भी बना सकते हो। Can you make a drawing of a brick which shows 4 of its faces? क्वेश्चन को अच्छे से समझे कि कैन यू मेक अ ड्राइंग, क्या आप ड्राइंग बना सकते हैं ऑफ अ ब्रिक विच शोज 4 ऑफ इट्स फेसेस, जिसके 4 फेसेस दिखाई दे। नो, वी कैन नॉट ड्रॉ एनी ड्राइंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज की ड्राइंग हम नहीं बना सकते हैं विच शोज 4 ऑफ इट्स फेसेस। मैक्सिमम हम 3 फेसेस ही शो हो वैसी ही ड्राइंग बना सकते हैं। कोई भी चीज के 4 फेसेस ड्रॉ हो वैसी ड्राइंग हम नहीं बना सकते हैं। ब्रिक है या इरेजर है या जियोमेट्री बॉक्स है, कुछ भी ले लो आप, किसी भी चीज की ड्राइंग मैक्सिमम हम 3 फेसेस ही ड्रॉ हो सके वैसे ही बना सकते हैं। 4 फेसेस हम ड्रॉ कर सकते हैं नहीं है। सो आंसर इज नो, सच ड्राइंग कैन नॉट बी मेड, ऐसी ड्राइंग बन ही नहीं सकती है। नाउ पेज नंबर 5, अ वॉल दैट विल नॉट फॉल, वैसी दीवार जो नहीं गिरेगी। So one day, Munya and Janab are playing with bricks and making their walls. Each makes a different wall. This wall was made by Janab and this wall was made by Munya. ये जैनाब ने बनाई है, ये मुनिया ने बनाई है वॉल। So Janab says her wall will not fall easily. Masons to do not put bricks one on top of the other as Munia has done. So Janab says, Janab कहती है कि मेरी जो वॉल है, Janab's wall will not fall easily. Janab की वॉल easily नहीं गिरेगी। Masons too do not put bricks one on the top of the others as Munia has done. मुनिया ने जैसा किया है वैसे मैसन्स कारीगर लोग भी नहीं करते हैं, एक के ऊपर एक ब्रिक को नहीं रखते हैं। अगर इस तरीके से ब्रिक को रखेंगे दीवार बनाने के लिए जैसे मुनिया ने किया है
तो इस तरह के की जो दीवार है वो इजीली गिर जाएगी। लेकिन जिस तरीके से ब्रिक्स को अरेंज किया है जैनाब ने अपनी वॉल बनाने में, इस तरीके की वॉल इजीली गिर सकेगी नहीं। तो किसकी वॉल स्ट्रॉन्ग है? द जैनाब्स वॉल इज स्ट्रॉन्ग एंड मुनियास वॉल इज वीक। So what do you think? Which wall will be stronger? So Janab's wall is stronger than Munia. जैनाब की वॉल है वो स्ट्रॉन्ग है। Now page number 5, different wall patterns. Here are photos of three kinds of brick walls. Can you see the difference in the way the bricks are placed? अलग अलग वॉल के पैटर्न्स आपको यहाँ पे फोटोग्राफ्स में दिखाए गए हैं। ऑब्जर्व करें कि किस तरीके से अलग अलग तरीके से ब्रिक को अरेंज किया गया है। नाउ मैच द फोटो ऑफ ईच वॉल विद द करेक्ट ड्राइंग बिलो। Here you can see the original real photographs of a wall, and here you can see the drawings of these walls. यहाँ पे आपको walls के original photographs दिखाए गए हैं और यहाँ पे आपको उसी walls के drawings दिखाए गए हैं। And now you have to match the photos of each wall with the correct drawing. और आपको ये photos के साथ उनकी drawing को match करना है। तो आप ध्यान से देखें तो आपको अलग अलग ये वॉल्स के अलग अलग फोटोग्राफ्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो मैच करते हैं। चलो फर्स्ट ये वाली वॉल देखते हैं। तो ये वाली वॉल को हम यहाँ पे मैच करेंगे। राइट, देखो ध्यान से देखो, है ना। नेक्स्ट हियर इस तरह की पैटर्न्स कहाँ हैं, कहाँ दिखाई दे रही है? तो ये रही पैटर्न्स, राइट। तो और ये वाली पैटर्न्स ये रही। तो ये हो गया सही मैचिंग। नाउ पेज नंबर 6, looking through a brick jali. The masons who built Jagriti school had also made different jali patterns on the wall. Here you can see the different jali patterns on the wall. अभी तक हम किस बारे में डिस्कस कर रहे थे? फ्लोर पैटर्न्स। फ्लोर पे जो ब्रिक्स की पैटर्न्स बनी है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। नाउ ये इन लोगों ने वॉल पे भी अलग अलग पैटर्न्स बनाई हैं ब्रिक्स से। यहाँ पे अलग अलग जाली बनाई हैं। सो हाउ मेनी डिफरेंट जाली पैटर्न्स कैन यू सी इन दीज टू फोटोज? आप ये दो अलग अलग फोटो में कितने तरह की जाली के पैटर्न्स देख पा रहे हैं? हियर ऑब्जर्व दीज 3 आर द सेम पैटर्न्स। ध्यान से देखें, ये तीनों एक ही तरह की पैटर्न्स हैं। तो पैटर्न नंबर 1 हो गया ये। तो नाउ पैटर्न नंबर 2 and this is pattern number 3 and here you can see these two photographs, sorry, two patterns are the same. तो ये होगी पैटर्न नंबर 4 and this is पैटर्न नंबर 5. तो टोटल कितनी पैटर्न्स हैं, कितनी जाली है वो नहीं पूछा है हमें। हमें यहाँ पे क्वेश्चन है कि कितनी पैटर्न्स है जाली की। जाली तो हो सकता है हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बता दे, बट नॉट हाउ मेनी जालीज आर देयर, बट हाउ मेनी डिफरेंट जाली पैटर्न्स आर देयर। तो कितनी पैटर्न्स हैं? 5 पैटर्न्स। So there are 5 different jali patterns in the given 2 photos. Next, page number 7. This is a drawing of another beautiful jali. Here you can see a different drawing of jali patterns. Now color some bricks red and make your own jali patterns in the wall drawn below. अभी आपके लिए होमवर्क है
कि आप भी यहाँ पे कुछ ब्रिक को रेड कलर करें और अपनी खुद की जाली के पैटर्न्स बनाएं, बट यू कैन नॉट कॉपी दीज पैटर्न। आप ये वाली पैटर्न को कॉपी नहीं करेंगे, अपनी खुद की पैटर्न्स बनाएं। दिस इज द होमवर्क फॉर यू, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट, पेज नंबर 7, कैन यू सी द विंडो Zeroka? Window, that means Zeroka. In this photo of the school, here you can see a window that is called Zeroka. ये एक विंडो बनाई गई है। हमारे स्कूल की, घर की जो दीवारें होती है उसमें भी विंडो होती है, बट वो आयरन से या वुडन से, लोहे की या तो लकड़ी की होती है। लेकिन यहाँ पे पैटर्न्स, यहाँ पे ईंटें नहीं रखकर एक अलग तरीके से डिजाइन से उन्होंने विंडो बनाई है। दैट इज कॉल्ड ज़रोखा, है ना। यहाँ पे आपको ज़रोखा दिखाई देता है। नाउ ड्रॉ सम ज़रोखा पैटर्न्स ऑन द वॉल हियर, यू कैन शेड इट ब्लैक। अब यहाँ पे आपको ब्लैक शेड करते हुए कोई ज़रोखा ड्रॉ करना है और एक ब्यूटीफुल ज़रोखा बनाना है। एंड दिस इज ऑल्सो अ होमवर्क फॉर यू, ये भी आपके लिए एक होमवर्क ही है। आपके टेक्स्ट बुक में ही करेंगे, ये नोटबुक में करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 8, दिस जाली इज फ्रॉम अ लाइब्रेरी बिल्डिंग इन केरला, see how the edge of the bricks is used to make a triangle in the wall. Here you can see white circle आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ईंटें दीवार में से बाहर आ रही हैं और ट्रायंगल शेप बना रही हैं, लाइक दिस। ये देखें, ये दीवार में से बाहर आ रही है और एक ट्रायंगल शेप बना रही है ना। यस, एंड हियर यू कैन सी ऑल्सो अ ट्रायंगुलर शेप ऑफ अ ब्रिक। इसमें भी आपको एक ट्रायंगुलर शेप दिखाई दे रहा है। लुक हियर, तो हैव यू सीन ब्रिक दैट लुक लाइक ट्रायंगल्स? आपने ऐसी कहीं डिजाइन्स देखी हैं जहां से ब्रिक को इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप में बाहर निकाला गया हो? लुक एट ब्रिक अराउंड द ट्री इन दिस फोटो, है ना। इस फोटो में भी अराउंड ये ट्री के आसपास जो ईंटें रखी गई हैं उसको ध्यान से देखें, बाहर निकलता हुआ ट्रायंगल आपको दिखाई देगा। यहाँ पर भी आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो ये ट्रायंगल पैटर्न हो गई। केरला की लाइब्रेरी में ये जो जाली बनाई हुई है पूरी दीवार में इस तरीके से बनाई हुई है, और कुछ ईंटों को इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप में बाहर भी निकाला गया है। Now, do you see the arc in this photo? This is from a school in फैजाबाद। अब क्या आपको यहाँ पे आर्क दिखाई दे रहा है क्या? अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि व्हाट इज आर्क। हियर यू कैन सी द आर्क। आर्क इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ सर्कल। सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा होता है आर्क। अब ये जो है, मेरा कर्सर देखें आप, यहाँ पे आपको ये जाली की पैटर्न्स दिखाई दे रही है। उसके ऊपर ये ईंटों को इस तरीके से अरेंज करके एक और डिजाइन बनाई गई है। दिस इज कॉल्ड आर्क। सो फाइंड आउट, लुक फॉर द अदर आर्कीज अराउंड यू एंड ड्रॉ देम। अब आपके आसपास भी कहीं पर भी अगर आपको आर्क दिखाई देते हैं तो उनका ड्राइंग बनाएं आप, और ब्यूटीफुल कलर भी करें, उसमें खूबसूरत लगे उस तरीके से कलर भी करें। तो क्या आपको कहीं आर्क दिखाई दिए आपके आसपास? लुक हियर, दिस इज अ ब्रीज। ये एक ब्रीज है बड़ा सा, और उसके नीचे भी देखो ये ईंटों से एक पूरा आर्क बनाया है।
राइट। आपकी सिटी में भी देखिए काफ़ी सारे ब्रिज होंगे जो आर्क शेप में होंगे, काफ़ी सारे टेंट बने होंगे वो आर्क शेप में होंगे, काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स लाइक पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, बिग लाइब्रेरीज, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, उनको देखिए जो पुराने बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे आर्क दिखाई देंगे। रेलवे स्टेशन ऑल्सो आर्क दिखाई देंगे आपको बहुत सारे। हैव यू सीन आर्क इज इन ब्रिज? इस ब्रिज में आपको आर्क दिखाई दे रहा है। यस, वी कैन सी इजीली आर्क हियर, यहाँ पे हमें इजीली एक आर्क दिखाई दे रहा है। एंड वे एज हैव यू सीन एन आर्क, और आपको यहाँ पे वो अलग अलग प्लेसेस के नाम लिखने हैं जहाँ पर आपने आर्क देखे हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, आप लिखेंगे यहाँ पे कि आपको किस किस जगह पे आर्क देखने को मिले हैं। Now page number 9, a special arc. In this photo from Ocha, see how the arc is made. It has a nice name, Gungat. गुंगट वाली मेहराब, इसको बोलते हैं गुंगट वाली मेहराब। दिस इज वन काइंड ऑफ आर्क, ये भी एक किस्म का आर्क है। बट आप ध्यान से देखेंगे इसमें घूंघट जैसा बना हुआ है ना, ये तो दैट इज कॉल्ड, दिस आर्क इज कॉल्ड घूंघट वाली मेहराब, द आर्क विथ वेल, इसको बोलते हैं घूंघट वाली मेहराब। सो इजंट द जाली ऑफ दिस विंडो ब्यूटीफुल? अब ये घूंघट वाली जो मेहराब है, आर्क है, उसको छोड़े, अब क्वेश्चन है कि ये विंडो में जाली जो लगी हुई है वो आप ध्यान से देखिए, ब्यूटीफुल है क्या? यस, these patterns of window are so beautiful, बहुत ही ब्यूटीफुल है। it is made of thin bricks, और ये भी आप ध्यान से देखिए ये ब्रिक्स है, थीन ब्रिक्स, बहुत ही पतली वाली ब्रिक्स में से ये सारी पैटर्न्स बनाई गई है। ध्यान से देखिए ये जाली बनाई है ना ब्रिक्स की, वो बहुत ही पतली वाली ईंटें हैं ये। हैव यू एवर सीन थीन ब्रिक्स? लुक अराउंड, क्या आपके आसपास जितनी भी बिल्डिंग्स हैं या आपकी खुद की बिल्डिंग्स या स्कूल में जहाँ जाते हो या कहीं और जगह जाते हो, कहीं आपने इतनी पतली वाली थीन ब्रिक्स देखी है क्या? पता करो कहीं देखी हो तो। नाउ पेज नंबर 10, Jamal and Kalu, the masons of Jagriti school, said that their grandfathers used many different kinds of bricks. Some of these are shown in this photo. तो अब जमाल एंड कालू है, दिस masons of Jagriti school said that their grandfathers used many different kind of bricks. उनके दादा लोग जो थे वो अलग अलग तरह की ब्रिक का यूज करते थे। एंड सम ऑफ दीज आर शोन इन दिस फोटो, यू कैन सी हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ब्रिक्स। ये अलग अलग तरह की आपको ब्रिक्स दिखाई दे रही हैं। सो विच ऑफ दीज ब्रिक्स हैव कर्व्ड एजेस? एज दैट मीन्स ये वाला हिस्सा जो किनारा होता है ना, ये इसको बोलते हैं एज। तो कोई भी एज आपको कर्व्ड दिखाई देता है क्या? ऐसे गोल बना हुआ, ये कर्व्ड है ना? ये ध्यान से देखिए, ये मेरा कर्सर देखिए, ये भी कर्व शेप है, ये भी एक कर्व शेप है, ये भी एक कर्व शेप है। तो ये ईंटों में से किसी की भी एज जो है वो कर्व्ड दिखाई देती है क्या? यस, सी दिस 4 ब्रिक्स, ये 4 ब्रिक्स को ध्यान से देखें, इनके जो एजेस है वो कर्व्ड है। ये देखो ये कर्व्ड एजेस है, ये कर्व्ड है, इसका ये कर्व्ड है, ये भी कर्व्ड है ना। नाउ हाउ मैनी फेसेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक? तो फर्स्ट आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट ब्रिक, पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि इसमें से लॉन्गेस्ट ब्रिक कौन सी है। तो दिस इज द लॉन्गेस्ट ब्रिक। एंड हाउ मेनी फेसेस डू यू सी, और इसके कितने फेसेस आपको दिखाई देते हैं? तो फेस नंबर 1,
and this is the face number 2. So we can see two faces of this longest brick. तो इसके दो फेसेस हमें दिखाई देते हैं, राइट? तो our answer is two faces. And is there any brick which has more than 6 faces? कोई ऐसी ब्रिक होती है क्या जिसके मोर देन 6 फेसेस होंगे? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. कोई ब्रिक ऐसी होती ही नहीं है जिसके मोर देन 6 फेसेस होंगे. Now page number 10. Find out the size of a brick. Have you seen bricks of different sizes? हाँ, अलग अलग साइज की ब्रिक होती है, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है. ओके, तो अलग अलग साइज की ब्रिक्स होती है. नाउ टेक वन ब्रिक एंड मेजर इट. अब आपको कोई भी एक ब्रिक लेनी है और उसको मेजर करना है. हाउ लॉन्ग इज इट, हाउ वाइड इट इज, एंड हाउ हाई इज इट. हाउ लॉन्ग कितनी लंबी है, हाउ वाइड कितनी चौड़ी है, एंड हाउ हाई कितनी ऊंची है. सो हियर दिस इज फॉर एग्जाम्पल. ये आपके लिए एग्जाम्पल है. हम यहाँ पे उसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट मेजर करते हैं. रिमेंबर दिस इज फॉर योर एग्जाम्पल. ये एक एग्जाम्पल के तौर पे ही है. आप अलग से कोई एक ब्रिक लेना, उसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट मेजर करना और अपने खुद के आंसर लिखना, मेरे कॉपी नहीं करना है. सो the length of this brick is suppose 20 centimeter. The width of this brick is 12 centimeter and the height of this brick is 7 centimeter. So we write here 7 centimeter. Length 20 centimeter, width 12 centimeter and height 7 centimeter. इसको बोलते हैं length. This is height एंड दिस इज विड्थ. लंबाई है उनकी, ये ऊंचाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई. नाउ मुनिया वॉन्ट्स टू मेक अ वॉल 1 मीटर लॉन्ग. सो हाउ मेनी ब्रिक्स विल सी नीड टू पुट इन अ लाइन. अब मुनिया है, वो एक वॉल बनाना चाहती हैं जिसकी जो लंबाई होगी वो 1 मीटर होगी. सो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड दैट 1 मीटर इक्वल्स हाउ मेनी सेंटीमीटर. So remember 1 meter equals 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. अब ये वाली ब्रिक से 100 सेंटीमीटर लंबी दीवार बनानी है मुनिया को. सो हाउ मेनी ब्रिक्स विल सी नीड टू पुट इन अ लाइन. तो उसको एक ही लाइन में कितनी ईंटें रखनी पड़ेगी तब जाके 1 मीटर दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर बनेगा. मानो कि एक ईंट रखते हैं तो 20 सेंटीमीटर होता है. 2 ईंट्स रखते हैं तो 20 + 20 40. 3 रखेंगे तो 40 + 20 60. 4 60 + 20 80 and 5 80 + 20 100. 20 20 20 20 and 20. 5 times 20 25s are 100 centimeter. So how many bricks will Munia need to put in a line? 5 bricks है ना. तो 5 ईंटें अगर रखेगी तब जाके 100 सेंटीमीटर होगा. आप अपना आंसर लिखिएगा यहाँ पे कि आपकी ईंट की लेंथ कितनी है, उसके हिसाब से यहाँ पे आंसर चेंज भी हो सकता है. तो मैंने पहले ही बताया है कि ये पूरे के पूरे जो आंसर है जस्ट फॉर एग्जांपल है. आप अपनी खुद की एक ब्रिक ले, लेंथ, हाइट एंड विड्थ मेजर करें, उसका आंसर यहाँ पे लिखे और बाद में पता करें कि कितनी ईंट चाहिए अगर 1 मीटर लंबी हमें वॉल बनानी है तो. नेक्स्ट टाइप पेज नंबर 10. Bricks and bricks, hot and fresh. So Ganesh and Shahiba live near a kiln where bricks are made. Here you can see a kiln. हमने पहले ही किल का फोटोग्राफ देखा था. ये दिस इज अनदर किल. ईंटों की भट्टी. किल दैट मीन्स ईंटों की भट्टी जहाँ पे ईंटें पकाई जाती हैं. So can you guess how high
is the chimney here? This is chimney. आप मेरा कर्सर देखें, दिस इज चिमनी, इसको बोलते हैं चिमनी। तो यहाँ पे आप पता करें कि चिमनी की हाइट कितनी होगी, गैस करें, जस्ट गैस करें। पता करना दैट मीन्स जाके कोई मेजर नहीं करना है, जस्ट गैस करें कि चिमनी की हाइट कितनी होगी। अबाउट 5 मीटर्स, अबाउट 15 मीटर्स और अबाउट 50 मीटर्स। क्या इसकी हाइट 5 मीटर के आसपास हो सकती है? नो। अबाउट 15 मीटर्स? नो। So about 50 meters? Yes. The height of this chimney may be 50 meters. 50 मीटर के आसपास हो सकती है। Now, Ganesh and Shahiba love to look at the patterns on bricks in the long lines kept out to dry. They also watch how bricks are made. Here, जो ब्रिक्स यहाँ पे ब्रिक्स बना रहे हैं, ये मिट्टी है, वेट क्ले, यहाँ पे भीगी हुई मिट्टी है, उसमें से ये लोग ब्रिक्स बना रहे हैं। यहाँ पे ब्रिक को सुखाने के लिए रखा है। उसके बाद इस ब्रिक को इस तरीके से लंबी लाइन में रखा है। तो गणेश एंड साहिबा को ये देखना अच्छा लगता है, ये वाली पैटर्न्स में रखी हुई ईंटें देखने अच्छी लगती है। So here are different 4 pictures from the brick kiln. These pictures are jumbled up. Jumbled up that means कि इधर उधर रखे गए हैं, sequence में नहीं रखे गए हैं। So look at them carefully and write the correct order. और करेक्ट ऑर्डर रख के ऑर्डर लिखे कि पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा और लास्ट में क्या होगा। So here you can see a different kinds of 4 photographs of a brick kiln. पिक्चर नंबर ए बी सी एंड डी। तो बताए कि पहले क्या होगा। तो हमें पता है कि ईंटें बनाने के लिए मिट्टी चाहिए। तो पहले तो मिट्टी की खुदाई करेंगे, तो फर्स्ट आएगा सी। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद भीगी हुई मिट्टी, ये भीगी हुई मिट्टी है, उसको ये ईंट बनाने का ये इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर रखेंगे। ये ढांचा है जहाँ जिस ढांचे में से ईंटें बन के यहाँ पे बाहर आती है। आपने भी शायद ये बॉल कटोरी होती है या ग्लास होता है, उसमें मिट्टी भर के आइसक्रीम या लड्डू बनाए होंगे उसी के शेप के। तो ईंटें हाथ से तो बनेगी नहीं, ईंटों का शेप देने के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो ये ढांचा है उसका, उसके अंदर ये गीली मिट्टी डालेंगे, उसके बाद उसी शेप की यहाँ पे ईंटें बाहर निकलेगी। तो ये वाला होगा। इसके बाद डी आएगा। अब सी में देखिए, उसने मिट्टी रखी थी हाथ में, उसके अंदर डाली, उसका शेप दे दिया ईंट का। अब यहाँ पे निकालेगा, जैसे आप ग्लास में मिट्टी भर के आइसक्रीम बनाते हो और निकालते हो, उस तरीके से ये ढांचे में से निकालेगा ईंट। तो ये आएगा बी। और लास्ट में आएगा, ये सूखने के लिए यहाँ पे रखी जाती हैं ईंटें, तो लास्ट में ए आएगा। सो करेक्ट ऑर्डर इज सी डी बी ए। नेक्स्ट, पेज नंबर 12, mental math. Bhajan buys bricks. Bhajan went to buy bricks. The price was given for 1000 bricks. The prices were also different for different types of bricks. Here you can see a different prices of different bricks. Old bricks, rupees 1200 for 1000 bricks. 1000 brick के 1200 rupees है for old bricks. New bricks from Itapur, rupees 1800 for 1000 bricks. And new bricks from Brickabad, rupees 2000 for 1000 bricks. ओल्ड ब्रिक्स की रेट है 1200। न्यू ब्रिक्स, ईटापुर वाली न्यू ब्रिक्स की रेट है 1800। एंड ब्रिकाबाद में जो ब्रिक्स बन रही हैं उसकी रेट है 2000। ये सारे की सारी रेट है वो 1000 ब्रिक्स की हैं। नाउ भजन डिसाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद। ही ब्रॉट 3000 bricks.
सो हाउ मच डिड ही पे? अब वजन है वो कितनी ईंटें लेना चाहता है? 3000 फ्रॉम ब्रिकाबाद, ब्रिकाबाद से वो लेना चाहता है। तो द प्राइस ऑफ 1000 ब्रिक्स ऑफ ब्रिकाबाद इज 2000, है ना। तो अगर वो 3000 ब्रिक्स लेना चाहता है तो इसको 3 टाइम्स करना पड़ेगा, 2000 प्लस 2000 प्लस 2000, राइट। So Bhajan brought 3000 new bricks from Brikabad and cost of 1000 new bricks from Brikabad is rupees 2000. So therefore cost of 3000 new bricks brought from Brikabad is rupees 2000 plus 2000 plus 2000. So 3 times 2000 equals rupees 6000. So right answer is 6000 rupees. Now guess what he will pay if he buys 500 old bricks. अगर वो ओल्ड ब्रिक्स लेता है ओनली 500 तो वो कितना पे करेगा? सो 1000 ओल्ड ब्रिक्स रेट इज रुपीज 1200। अगर वो 1000 ओल्ड ब्रिक्स लेता है तो उसको कितने पे करने पड़ते हैं? 1200। और वो कितनी खरीद रहा है? 500। तो देयरफॉर 500 ओल्ड ब्रिक्स इक्वल्स ये 1000 का हाफ है तो यहाँ पे उसका रेट भी हाफ होगा। सो हाफ ऑफ रुपीज 1200। सो व्हाट इज द हाफ ऑफ 1200? 1200 का हाफ क्या होगा? यस डेफिनेटली रुपीज 600। दिस इज द आंसर। यहाँ पे अगर वो 3000 ब्रिक्स ब्रिकाबाद से लेता है तो 6000 रुपीज़ के पे करने पड़ेंगे, और 500 ओल्ड ब्रिक्स खरीदता है तो उसको 600 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, दिस इज द क्वेश्चन फॉर एक्सरसाइज। एक और क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज के लिए। हियर this is, you can see here, circle, oval, square and triangle, and here you can see pizza, ball, watermelon and gift box। आपको यहाँ पे अलग अलग फोटोग्राफ्स और शेप्स दिखाई देंगे। कुछ मैच हो रहा है और कुछ समझ में भी आ रहा है हमें, है ना। तो क्या हो रहा है? सो दीज ऑल शेप्स आर इन 2D शेप्स। ये सारे के सारे जो शेप्स है ना वो 2D है। 2D, D फॉर डायमेंशन। तो यहाँ पे डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ, हाइट एंड विड्थ। ये लंबाई, चौड़ाई एंड ऊंचाई, उस तीनों में से कोई भी दो चीज ही मेजर कर सकते हैं। तो वो हो गए आपकी 2D शेप। यहाँ पे आप या तो लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, तीनों में से कोई दो चीज ही मेजर कर पाएंगे। इसलिए ये हो गया आपके 2D शेप्स। एंड दीज ऑल आर 3D shapes. Here you can measure all 3 dimensions, length, height and width. यहाँ पे आप अगर आपके पास पिज़्ज़ा है, बॉल है, वाटरमेलन है या गिफ्ट बॉक्स है तो आप उसकी लंबाई भी मेजर कर सकते हैं, लेंथ, विड्थ एंड यू कैन ऑल्सो मेजर द हाइट ऑफ द पर्टिकुलर थिंग। और आप उसकी हाइट भी मेजर कर सकते हैं। That is why these all are 3D shapes. तो 2D shapes वो होंगे जिसके आप दो ही डायमेंशन मेजर कर सकते हैं। डायमेंशन दैट मीन्स हाइट, विड्थ एंड लेंथ, ये डायमेंशन है। ये डायमेंशन जो 3 है हमारे, उसमें से कोई भी दो चीज़ मेजर कर सकते हैं आप, तीसरी आप मेजर नहीं कर सकते, होती ही नहीं है तो मेजर कहाँ से करेंगे? तो उसको बोलेंगे आप 2D shapes। और जिसमें आप तीनों की तीनों डायमेंशन, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, तीनों ही मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड 3D शेप्स। वो सारे के सारे 3D शेप्स होते हैं। नाउ ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द 2D शेप्स टू इट्स
3D शेप्स। अब आपको ये 2D शेप्स को 3D शेप के साथ मैच करना है। तो सर्कल easily you can make circle with ball, oval with watermelon, square with gift box and triangle with pizza का। ये सारे के सारे 2D शेप्स है और ये सारे के सारे 3D शेप्स है। Now find out old bricks cost rupees 1400 for 1000 bricks and new bricks cost rupees 2000 for 1000 bricks। क्वेश्चन है कि 1000 ओल्ड ब्रिक्स की कॉस्ट है 1400 एंड 1000 न्यू ब्रिक्स का कॉस्ट है रुपीज 2000। सो क्वेश्चन नंबर ए कि इफ रामलाल बॉट 500 न्यू ब्रिक्स सो हाउ मच डिड ही पे। अगर वो 500 न्यू ब्रिक्स खरीदते हैं तो कितना पे करेंगे। सो 1000 न्यू ब्रिक्स इक्वल्स रुपीज 2000, राइट। 1000 अगर न्यू ब्रिक्स खरीदने हैं तो 2000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। सो देयरफॉर 500 न्यू ब्रिक कॉस्ट हाफ ऑफ 2000। 1000 न्यू ब्रिक्स का 500 न्यू ब्रिक्स हाफ हो गया तो उसका रेट भी हाफ होगा। तो व्हाट इज हाफ ऑफ 2000? 2000 का हाफ आधा क्या होगा 1000 रुपीज। तो आवर आंसर इज रुपीज 1000। And question number B, if Shamlal bought 1000 new bricks and 1000 old bricks, so how much did he pay? Now Shamlal दोनों ही bricks खरीदते हैं 1000 new bricks and 1000 old bricks, दोनों ही bricks खरीदते हैं तो कितना पे करेंगे। So 1000 new bricks cost rupees 2000 and 1000 old bricks cost rupees 1400। 1000 न्यू ब्रिक्स का रेट है 2000 रुपीज एंड 1000 ओल्ड ब्रिक का रेट है 1400 रुपीज। तो व्हाट इज द टोटल? टोटल क्या होगा? सो टोटल इक्वल रुपीज 2000 प्लस रुपीज 1400, दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या होगा? आंसर इज रुपीज 3400। तो ये हो गया हमारा आंसर। And here are chapter number 1 building with bricks ends। यहाँ पे हमारा चैप्टर है वो खत्म होता है। जितने भी क्वेश्चन आंसर हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं सारे के सारे आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे। जो होमवर्क दिया है वो भी आप अच्छी तरीके से करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो वीडियो को फिर से दोबारा आप देखें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।